स्टार्ट करते। ठीक है, शुरू कर दो। Good afternoon, everyone. I am Keshav, today's session moderator, and I welcome you all to today's webinar on 360-degree reassessment and search proceeding, section 147 to 153, and new block assessments. At first, I would like to thank all the participants for joining today's webinar. Provides professional a chance to enhance their knowledge across different area of taxations and litigations. Now, I would like to acknowledge and thank our webinar organizer, CA Dr. Raj Chawla sir, to provide such an amazing platform where we get knowledge across disciplinaries. With this, I would request CA Dr. Raj Chawla sir to give opening remark to start the webinar. Thank you, Keshav. Good evening, everyone. I welcome all of you in this today webinar on 360 reassessment search proceeding section 147 to 153 and new block assessment. And today our guest speaker, Advocate Manoj Sharma ji, will take reassessment law under section 147, 148 and 148A, scope, condition and practical issues, time limit and approval under sections 149 and 151, validity of notices, section 153, timeline, impact on reassessment and search cases, new block assessment regime with effect from 1st of November September 24 for search proceeding, and latest Supreme Court and High Court rulings on reassessment and search. So, friends, if you have any query during the presentation of our guest speaker, Advocate Manoj Sharma ji, you can ask directly, or you can write down your queries in the Q&A. After the deliberation by Advocate Manoj Sharma ji, we will take up all of your queries, and the recording and the PPT of our speaker will be provided to you after this deliberation. If possible, it will be provided today. If it will be downloaded today only, otherwise Monday morning you will get the required information. So let us enhance our knowledge regarding this reassessment, and over to Keshav. Thank you, sir. Now it's my pleasure to introduce our esteemed speaker for today's session, Advocate Manoj Sharma sir, a distinct tax litigation professional with more than 25 years of experience in field of direct and indirect taxation. He holds strong academic qualification including BCom, MCom, LLB, and MBA Finance, which give him a rare combination of litigation expertise along with deep financial understanding. During his long professional journey, he had handled thousands of taxation matters, including reassessment proceedings, search, seize cases, appellate litigation, and complex tax disputes. He regularly appeared before various appellate and judicial forums, such as Honorable Income Tax Appellate Tribunal and various high court across India, representing taxpayers in high stake litigation matters. With this, I would request Advocate Manoj Sharma sir to kindly begin the session. थैंक यू केशव जी। आई एम थैंकफुल टू सी डॉक्टर राज चावला जी कि जिन्होंने हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए आज इतना यूजफुल और नॉलेजेबल ओरिएंटेड वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। यह इनिशिएटिव वास्तव में एक प्रोफेशनल लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा उनके साथ पिछले अराउंड 21 ईयर्स से अधिक का समय एसोसिएट रहा हूं उनके साथ, बहुत प्रोफेशनली और पर्सनली। इस लॉन्ग जर्नी में मैंने हमेशा उन्हें एक एक्सीलेंट प्रोफेशनल और साथ ही एक बहुत ही अच्छे और सिंपल इंसान के रूप में देखा है। उनका पोलाइट बिहेवियर, पंचुअल नेचर, डिसिप्लिन्ड वर्किंग स्टाइल हम सभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। आज वे जिस पोजीशन पर हैं
वह केवल उनकी हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंटिन्यूअस एक्सपर्ट का रिजल्ट है। स्मॉल बैंक फैमिली बैकग्राउंड होने के बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और सक्सेस हासिल की। वह सच में हम सभी के लिए एक इंस्पायरेशन है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर और व्यूज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वे लगातार ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे, जो पूरी प्रोफेशनल फर्टिनिटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वंस अगेन थैंक यू सो मच राज चावला सर, and thanks who are joining this webinar. So today we will discuss the issue reassessment law under section 147, 148 and 148A, scope and practical issues, notice, validity, time limits and sanction, section 141 and 151, section 153, timeline, new block assessment regime, latest Supreme Court decision, etc. So my humble submission or request to attend is that this is interactive session, और इसके अंदर हम प्रैक्टिकल जो डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, जो हम एसएससी फेस करता है या प्रोफेशनल्स फेस करते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो एक दूसरे से क्वेश्चन हम करें तो प्लीज उस समय अनम्यूट कर लें, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट रहे हमारा। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये देखिए कि सेक्शन 147 है क्या, सेक्शन 147 क्या है, 148 क्या है, 149 की जो टाइमलाइन हमारे उसमें दी गई है उसमें क्या क्या है, और 153A 153C जो पहले होता था, जिसमें सर्च की असेसमेंट की जाती थी, ब्लॉक असेसमेंट वगैरह होती थी, और बाद में अभी 1 सितंबर 2024 के बाद भी न्यू ब्लॉक असेसमेंट स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने। तो आज हम वो सारे इश्यूज को डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सेक्शन 147 और 148 है क्या। प्लीज थोड़ा थोड़ा अपना मैसेज करें या बताएं कि है क्या वह सेक्शन 147। चलो थोड़ा सा स्टार्टिंग मैं ही कर लेता हूं कि दिस सेक्शन गिव्स, सेक्शन 147, पावर टू रीओपन। दिस सेक्शन गिव्स अथॉरिटी टू इनकम टैक्स ऑफिसर and it allows him to reassess income which escaped tax. It is the main section for reopening assessment. Okay, और section 148 क्या है? This section is about procedure. Officer must first send a notice to taxpayer. Without this notice, reopening is not valid. So in simple words, 148 is start of reopening process only. सर ये बताइए कि 148 कब लगेगा, कब 148 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है? एनीवन? May I? जी, Good evening. खेमका May I? सर। Yes, I वेरी would गुड। like to add few things. यस मैम। Yeah. So 148 is a jurisdictional notice, which is a यस, prerequisite for initiating the assessment or reassessment under Section वेरी 147. गुड। So the timelines are prescribed under Section 149. And for initiating the assessment or reassessment, the AO, the assessing officer, must have an information which guarantees that there is an income escaping assessment. And for that, they can be in the possession of books of accounts or have an evidence or any information or documents which evidences that there has been an income escaping assessment. And for this, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। different activities are like different things are like asset, which has a distinct different definition, and there are different provisos and the other provisos for that, which has been encrypted under Section 149. वेरी गुड मैम। एनीवन? This is the basic information must be. The assessing officer should have information on the basis of he can issue notice under section 148. बट अब इंफॉर्मेशन का एरिया जो काफी वाइड कर दिया गया है आफ्टर 1 अप्रैल 2021। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास होनी चाहिए
दूसरा और क्या सोर्स हो सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास 148 इशू करने के लिए? असेसिंग ऑफिसर के पास एक बहुत बड़ा सेक्शन है 132, 132A, 132 एंड 133A। 132 के अंदर जो सर्च करता है डिपार्टमेंट, उसमें इतने नंबर ऑफ केसेस जनरेट हो जाते हैं कि उनके पास अभी लेटेस्ट ये है कि जो प्रॉपर्टीज डीलर है, जो बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर पीछे लास्ट टाइम सर्च जो हुई, मोर देन 2000 केसेस रीओपन हो गए। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, अभी जैसे फेसलेस है बट उनको जिनकी असेसमेंट सेंटर सर्कल में होनी थी, उन केसेस को भी असेसिंग ऑफिसर, जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया। बिकॉज आफ्टर सर्च देयर आर मैनी केसेस, द जुडिशनल जो सेंटर सर्कल है वो उन असेसमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो सीबीडीटी ने इसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी किया गया कि आप लोग जो जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर है वो उन केसेस की असेसमेंट करेंगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि सेक्शन 148 की कैसे शुरुआत होती है, कैसे सेक्शन 148 लगेगा। और सेक्शन 148 तब से है जब से इनकम टैक्स एक्ट है। 1922 जब इनकम टैक्स था तब भी 148 के प्रोविजंस थे। 1961 आया, उसके बाद भी सेक्शन 148 रहा है हमारा। बट टाइम टू टाइम इसमें डेफिनेशन चेंज होती रही है। जो फर्स्ट डेफिनेशन थी इनकम टैक्स के अंदर वो थी एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मींस ऐसी भी कोई इनकम जिसको अनडिस्क्लोज है, असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है, तो उसमें 148 नोटिस इशू कर सकता था। पहले इन 2001, 1 जनवरी 2001 में 4 इयर्स इफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम बिलो 1 लाख, पहले ये सेक्शन में 148 के लिए मिनिमम 4 इयर्स था, जिसमें अगर 1 लाख से नीचे की अनडिस्क्लोज इनकम है तो उसमें 4 इयर्स तक असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता था, और 1 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक नोटिस इशू कर सकता था। इन जुलाई 2012 एक प्रोविजन और आया कि जो फॉरेन इनकम है अनडिस्क्लोज्ड, उसमें पिछले 16 साल तक का 148 डिपार्टमेंट कर सकता है। इन अर्लियर ईयर सर्विस ऑफ नोटिस विद प्रेस्क्राइब्ड पीरियड नॉट मस्ट। मींस कि अभी जैसे टाइम बारिंग है कि 4 इयर्स के अंदर आपको नोटिस 148 का इशू करना है, पहले ये पीरियड नहीं होता था। एज पर सेक्शन 148 द नोटिस शुड बी इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड ओनली। once the notice is issued within the prescribed time, it is immaterial that it is served on the assessee or not. But आज की डेट में क्या है कि notice should be served to the assessee. After court judgment, it came to the act that notice shall serve on the assessee, and not only served but should be served on the proper person entitled to receive the same on behalf of the assessee. Service by post is sufficient, but it should be served to the proper person. After service of notice, the assessee will file return in response. पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट ने नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू कर दिया। एक प्रैक्टिकल में आपको बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट 148 इशू कर देता था जब हम ऑब्जेक्शन लगाते थे कि 148 का नोटिस ही नहीं मिला एसएससी को, तो डिपार्टमेंट क्या करता था, अफिक्सचर नोटिस करके दिखा देता था कि भाई जो मेरे पास जो एड्रेस अवेलेबल है एज पर माई रिकॉर्ड, मैंने इंस्पेक्टर को भेज करके वहां नोटिस अफिक्सचर करा दिया था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। और क्या करता था, स्पीड पोस्ट कर देता था इशू। उसमें कई क्वेश्चंस ये आते हैं कि जैसे किसी केस में टाइम बारिंग 31 मार्च है, 31 मार्च को असेसिंग ऑफिसर क्या करता था, क्योंकि जब सर्च होती है इनकम टैक्स में, सर्च के बाद काफी नंबर ऑफ केसेस जनरेट हो जाते हैं। नंबर ऑफ केसेस जनरेट होने के बाद जब वो टाइम बारिंग होता है जिस साल में, तो इन्वेस्टिगेशन से उसी साल की एक लिस्ट आती है, एक्सेल में डालते हैं या पीडीएफ में डालते हैं, भेजते हैं डिपार्टमेंट के पास। मैं आपको ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है डिपार्टमेंट की। थाउजेंड ऑफ केसेस की एक लिस्ट जारी कर दी जाती है डिपार्टमेंट के अंदर, वो असेसिंग ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो डिस्ट्रीब्यूट कब होती है, 25 मार्च को होगी। 26 मार्च को नोटिस के लिए एक लिस्ट बना दी जाती है। असेसिंग ऑफिसर फाइंड आउट करता है कि इस लिस्ट में से मेरा असेसी कौन है, मेरी जुडिक्शन पड़ती है नहीं पड़ती। 2 से 3 दिन का टाइम उनका उसी चीज में निकल जाता है। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को वो फाइंड आउट करेगा कि उसने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है, क्योंकि सेक्शन 151 के अंदर जो परफॉर्मा दिया गया है उसको कंप्लीट करना भी जरूरी होता है। तो वो टाइम उसका कंज्यूम होता रहता है और वो लास्ट में इतनी डेट पे आ जाता है कि वो 30 मार्च तक पहुंच जाता है ऐसे करते करते। फिर वो जल्दबाजी के अंदर 148 के रीजन रिकॉर्ड करेगा, अप्रूवल लेगा हर स्पेसिफाइड अथॉरिटी से,
उसके बाद कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में गलती हो जाती है उससे, वो इंटेंशन नहीं होती वो, लास्ट मोमेंट पे उसके पास वो आता है, इंफॉर्मेशन आती है, तो उसकी वजह से उसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और वही प्रॉब्लम एसएससी के लिए बेनिफिट ये होता है कि मोर देन 70% केसेस आपके प्रोसीजरल डिफेक्ट के उससे ही 148 की क्वैश हो जाती है। अगर हम डिपार्टमेंट का पूरा परफॉर्मेंस चेक करें, तो सारा प्रोसीजर अगर चेक किया जाए, तो काफी हद तक केसेस स्टार्टिंग के अंदर ऑब्जेक्शंस में ही हम उसको क्लियर करके एडिशन जो हमारा नोटिस 148 को अपील के अंदर या असेसमेंट के अंदर उनको ड्रॉप की जा सकती है प्रोसीडिंग्स। तो आज हम डिस्कशन इन चीजें के बारे में ही करेंगे, और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपनी एक पीपीटी हमने बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, 1 अप्रैल 2021 से पहले जो असेसमेंट होती थी 148 की, उसमें कई किसी साल में 3 इयर्स था, किसी में 6 इयर्स था, 4 इयर्स था, बट उसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि कितनी इनकम के ऊपर आप इनकम एस्केपमेंट की जाएगी। तो उसके लिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जब आई तो उन्होंने काफी इसके ऊपर काम किया, और उन्होंने अपने बजट के अंदर भी ये डाला कि जो उनका 2021 में बजट पास हुआ, उसके अंदर उन्होंने एक पैरा था 153, मैं आपके सामने रीड करना चाहता हूं। Intention and purpose of the enactment is clear from the paras 153 and 154 of the budget speech of the Honorable Finance Minister for the year 2021-22. Reduction in time for income tax proceedings. क्योंकि पहले हमारी प्रोसीडिंग्स काफी लंबी होती थी, जिसमें 16 साल तक का फॉरेन इनकम अगर कोई अनडिस्क्लोज है वो रीओपन हो जाती थी। 6 इयर्स था, 4 इयर्स था, 10 इयर्स था। तो उसके लिए 153 एक उनका पैरा था जो बजट का, उसको मैं रीड करना चाहता हूँ। Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a long time. In 154 para, she said, I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessment to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh. पहले ये 50 lakh नहीं था, or more in a year can be assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the principal chief commissioner, the highest level of the income tax department. देखिए, काफी हद तक जो लेजिस्लेचर है उन्होंने अपना काम किया, बट जो एग्जीक्यूट जिन्होंने करना है, ब्यूरोक्रेट्स ने करना है, वो शायद अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाए। क्योंकि देखो, जो मेंटेलिटी है ऑफिसर्स की, वो मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते हम डिपार्टमेंट की। लेजिस्लेचर ने अपना काम बड़ा अच्छा किया, जो टाइम को रिड्यूस करके उसको 3 इयर्स और 10 इयर्स में किया। 3 इयर्स के अंदर उन्होंने डाला कि अगर आपकी इनकम लेस देन 50 lakhs है, तो आप का 148 3 इयर्स तक का रीओपन हो सकता है। अगर आपकी इनकम मोर देन 50 lakhs है, तो आपका केस मैक्सिमम टू 10 इयर्स तक रीओपन कर सकता है डिपार्टमेंट। तो ये काफी एक बड़ा चेंज किया था डिपार्टमेंट ने। हालांकि डिपार्टमेंट को ये लगा कि भाई हमने चेंज किया है तो बड़े बड़े ऑफिसर से इसकी अप्रूवल ली जाए, क्योंकि पहले अप्रूवल लेनी पड़ती थी एडिशनल कमिश्नर्स की और कमिश्नर्स की। किस कंडीशंस में हमें एडिशनल कमिश्नर की लेनी पड़ती थी? अगर किसी केस के अंदर रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है, तो उस केस के अंदर एडिशनल कमिश्नर की परमिशन ही सफिशिएंट थी। बट इन केस रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड और इन केस द असेसमेंट हैज ऑलरेडी बीन डन, इन दैट केसेस द असेसिंग ऑफिसर हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये काफी एक नया चेंज मैडम के उससे आया 1 अप्रैल 2021 के बाद। वेलकम चेंज था, बट ऑफिसर्स की जो मेंटेलिटी है वो चेंज नहीं हो पाई। काफी लिटिगेशन फिर भी स्टार्ट हुए। नया प्रोसेस आया 148A, 148B, 148C, 148D, चार उसके अंदर उन्होंने सेक्शन के अंदर डाले गए, सब क्लोज डाले गए। सेक्शन 148A के अंदर उन्होंने डाला कि इंक्वायरी इज मस्ट, कि बिफोर इश्यूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 द असेसिंग ऑफिसर हैज इंक्वायरी, has information, and after information he has inquiry the information
कि ये आपके असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई, उसने उसके ऊपर इंक्वायरी की, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने एक शोकाज नोटिस इशू किया सेक्शन 148 ए बी के अंदर, और 148 सी के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को अपॉर्चुनिटी दी to file his objection or whatever he wants to say on this, और 148 AD के अंदर असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर भी स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा, और स्पीकिंग ऑर्डर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो सेक्शन 149 ए के सॉरी सेक्शन 149 के अंदर हमारे को टाइम दिया गया कि 3 इयर्स और 10 इयर्स के बारे में बताया गया। और आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके ओके, एक्चुअली नेट का कुछ इशू दिखाया था मुझे, तो मैं इसलिए डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो सेक्शन 151 के अंदर बताया गया कि किस ऑफिसर की परमिशन ली जाएगी, और सेक्शन 149 के अंदर हमारे को ये बताया गया कि कितने साल तक केस रीओपन हो सकता है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ, ताकि इस प्रोसेस को आगे फिर स्टार्ट किया जाए सेक्शन वाइज। सर विजिबल है? Yes, sir. देख पा रहे हैं सर आप? Yes, yes, sir. PPT नहीं आई है आपके, डेस्कटॉप आया है। Yes. पीपीटी नहीं आई है? एक सेकंड सर। मे बी प्रोसेस स्लो होगा। पीपीटी आपने ओपन की है सर अपने डेस्कटॉप पे? हाँ सर, मैंने ओपन कर दिया। एक बार सर आप स्क्रीन शेयरिंग एक बार स्टॉप करके फिर स्टार्ट करके देख लीजिए सर, या मैं दोबारा पहले करता आप हूँ सर। पीपीटी ओपन रखिए और स्क्रीन शेयरिंग बाद में स्टार्ट कीजिए बंद करके। एक सेकंड सर, पहले मैं पीपीटी ओपन करूं? हाँ जी, अपने सिस्टम में ओपन करके रख लीजिए। मैंने कर दिया सर। एक्चुअली सर आ रही है मेरी पीपीटी? नहीं सर, आप एक बार ना स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए शेयरिंग। हाँ भी आ गई। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं सर। 1961 से इनकम टैक्स में जो 148 आया, उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंट्रोड्यूस सेक्शन 148 एम्पावरिंग असेसिंग ऑफिसर टू रीओपन व्हेन इनकम अपीयर टू हैव एस्केप्ड असेसमेंट। द प्रोविजन अलाउड रीअसेसमेंट बेस्ड ऑन रीजन टू बिलीव। 1961 में एक पीरियड के बाद ये आया, पहले तो असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन थी, उसके बेस पे ही असेसिंग ऑफिसर 148 इशू कर देता था। बट काफी जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, जिसके बाद उसके अंदर डाला गया कि द असेसिंग ऑफिसर शुड हैव रीजन टू बिलीव before issuing notice under section 148. Only on the basis of information in his hand, he cannot issue notice under section 148. He has applied his mind, he should apply his mind, and reason to believe is must. तो 1961 के बाद अब इसमें हम आते हैं 1987 के अंदर। 1987 में भी कुछ चेंजेस आया। अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल बिफोर रीओपनिंग असेसमेंट बियॉन्ड स्पेसिफाइड पीरियड, एनहांस स्क्रूटनी ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल टैक्सेस। कि अप्रूवल किस ऑफिसर से हमें क्या लेनी है, वो एक थोड़ा सा हल्का चेंज आया था। 1989 के अंदर आया कि 148 कितने साल तक रीओपन किया जा सकता है। फर्दर 3 इयर्स एंड 10 इयर्स उसके अंदर आया। अब जो हमारा मेन चेंजेस आया सेक्शन 148 के 2021 के अंदर आया। तो आप मेरी इस पीपीटी में नंबर 4 देखेंगे, 2021 फाइनेंशियल एक्ट ओवरऑल, complete substitution of section 147 to 149 and 151 effectively 1st April 2021. Introduction of section 148A mandatory inquiry
and opportunity before issuing notice under section 148. Stricter procedural safeguards against arbitrary opening. तो सेक्शन 148 के पहले जैसे हमने डिस्कशन किया कि इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर, एक केस था जीके एंड ड्राई श्राफ का। जीके एंड ड्राई श्राफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148, उसमें नहीं था कि बिफोर इशूइंग अंडर सेक्शन 148 यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी। उसके अंदर पहले ये होता था कि असेसिंग ऑफिसर आपको 148 का नोटिस इशू करेगा, उसके बाद ही आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। बट उसमें भी एक इशू ये रहा कि द असेसिंग ऑफिसर विल गिव यू रीजन आफ्टर फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न। Before filing of your return, the assessing officer was not giving the copy of reason recorded by him. तो ये जो न्यू अमेंडमेंट आई है इन 2021 में, उसके अंदर जीके एंड ड्राई ड्राफ्ट को काफी हद तक लागू किया गया, उसको एक्ट के अंदर डाला गया और उसमें किया गया कि सेक्शन 148 ए बी सी डी ये जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि बिफोर इशिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 के लिए, ताकि लिटिगेशन मैटर्स को कम किया जाए। क्योंकि ये काफी बड़ा लिटिगेशन का इशू था कि असेसिंग ऑफिसर नोटिस 148 तो इशू कर देता है बट हमें उसकी रीजन की कॉपी प्रोवाइड नहीं कराता, और रीजन की कॉपी प्रोवाइड करता है तो एट द एंड ऑफ द, जब असेसमेंट बिल्कुल कंप्लीशन पे है, लिटिगेशंस के मैटर हुए हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाता था, ट्रिब्यूनल्स वगैरह में भी ये काफी मैटर रहा। तो इसको एक न्यू वेलकम चेंज डिपार्टमेंट ने किया 2021 में, तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। और 2026 फर्दर उसके जो अंदर चेंजेस किए गए वो भी हम आज डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। एडिशनल अमेंडमेंट्स, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाइंग जुडिक्शनल इश्यूज, reducing limitation periods of high value cases, and strengthening approval retrospective provisions to address judicial interpretation. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अपने बजट के अंदर 3 इयर्स 50 इयर्स का किया था, तो हम स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन 148 से। कोर प्रोविजनल, द असेसिंग ऑफिसर में सर्व ए नोटिस अंडर सेक्शन 148 if they are have information which suggests that any income chargeable to tax has escaped assessment. This is the definition of section 148 और उसके की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके लिए हम वो डिस्कशन करेंगे अभी। मस्ट बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, मींस नॉट मियर सस्पिशन और चेंज ऑफ ओपिनियन, कि असेसिंग ऑफिसर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने शोकाज नोटिस इशू किया और शोकाज नोटिस इशू होने के बाद वो हमारा चेक करे कि क्या इंफॉर्मेशन आई, नहीं, उसमें असेसिंग ऑफिसर के पास पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी के बाद ही सेक्शन 148 ए का नोटिस इशू सेक्शन 148 बी का नोटिस शोकाज इशू करेगा। सेकंड इसमें चीज आती है रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम स्पेसिफाइड अथॉरिटी, कि जो एडिशनल कमिश्नर है या चीफ कमिश्नर है या कमिश्नर किस कंडीशन में किन की परमिशन ली जाएगी वो इसके अंदर डिसाइड किया गया। इसमें डिसाइड ये किया गया कि प्रिंसिपल कमिश्नर के लिए हम अप्रूवल उनसे लेंगे और चीफ कमिश्नर से किन कंडीशन अंदर अप्रूवल लेंगे। जिन केसेस के अंदर 3 इयर्स इसमें मोर देन 50 लाख है, चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर से परमिशन ली जाएगी। अगर हमने किया है तो असेसमेंट प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी, कैंसिल कर दी जाएगी, वाइड अबिनिश हो जाता है, प्रोसीडिंग डिलीट कर दी जाती है। काफी हायर अथॉरिटीज, ट्रिब्यूनल से, कमिश्नर अपील से और काफी हाई कोर्ट्स ने, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट्स ने काफी इसके ऊपर डिसीजन दिए गए हैं। हम वो डिसीजन भी आज डिस्कशन करेंगे। मैंडेटरी अपॉर्चुनिटी अंडर सेक्शन 148, जैसे हमें मैंने भी आपको बताया कि 148 ए के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 सब्जेक्ट टू केशव जी, जसविंदर सर, मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी सर। सर क्लियर आ रहा है ना सर, समझ?
अभी अभी सर जस्ट थोड़ा थोड़ा अभी इशू है लैब जी होने साउंड लगी का, है थोड़ी सी। थोड़ा थोड़ा ओके साउंड का सर, इशू आ रहा है जी। नेक्स्ट है सर। ठीक है सर, मैं थोड़ा स्लो स्लो इसको कहीं बस स्पीडली। अब आते हैं सेक्शन 149 टाइम लिमिट्स। नॉर्मल केसेस में 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो इसमें कहा गया कि 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स। तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स को हम कैसे काउंट करेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मेरी 2021-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न है। 2021-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2022 तक। तो 3 year फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर मींस कि एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर का हमारा फाइनेंशियल क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च, सॉरी 31 मार्च असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2023 तक। एम आई राइट सर? 31 मार्च 2023 तक कर सकते हैं। तो 3 साल उससे 2023 से काउंट करेंगे, यानी कि 24, 25 और 26, यानी कि 3 years हमारे कम कंप्लीट हो सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। ठीक है सर? एनी डाउट इन दिस सर? और अब आता है नेक्स्ट, एक्सटेंडेड केसेस प्री 2021। पिछले 10 साल का, 10 साल की भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि किसमें, क्योंकि 2021 से वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। एक्सटेंडेड केस 10 years if escaped assessment, escaped income exceed 50 lakhs and relates to assets oblique expenditure oblique entry। जैसा खेमका मैडम ने बताया था अभी हमारे को कि एक्सपेंडिचर है, एसेट्स हैं, उनके बेसिस पे भी हम, अगर कोई अनडिस्क्लोज मिलती है डिपार्टमेंट को, तो उसके बेसिस पे भी हम 148 इशू कर सकते हैं। इसमें भी हमारा 10 years ऐसे ही काउंट करेंगे, 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द रिटर्न वाज फाइल्ड। सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि असेसमेंट ईयर 2015-16 का अगर हम लेंगे, असेसमेंट 2015-16 का लेते हैं, तो 2015-16 की रिटर्न कब तक फाइल हो सकती है सर हमारी? 31 मार्च 2017 तक। तो 2015-16 की रिटर्न कब तक जा सकती है? 15-16 की 31 मार्च 2017 तक जा सकती है ना सर? तो उससे 10 years काउंट होंगे, यानी कि 31 मार्च 2027 तक हमारा 148 हो सकता था उस केस के लिए। बट उसके लिए मेन कंडीशन क्या है कि आपकी इनकम एस्केप्ड मोर देन 50 lakhs होने चाहिए। एक चीज का आप ध्यान रखें, वो हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। डिपार्टमेंट जो एक्ट के अंदर लिखा है, इनकम लिखा है, इनकम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इनकम का मतलब है क्या। क्योंकि कई बार हम इनकम डिपार्टमेंट जो 148 आजकल जो इशू कर रहा है काफी हद तक, क्योंकि डिपार्टमेंट जो 148 इशू करता है वो ओनली बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इंक्वायरी करना, वो इंक्वायरी नहीं करता। इन मैक्सिमम केसेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइड पोर्टल, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि इनसाइड पोर्टल के बेसिस पे 148 डिपार्टमेंट कर देता है। पोस्ट फाइनेंस एक्ट 2021 कि 3 years, अब जो नेक्स्ट 1 सितंबर के बाद आ गया है हमारा 3 years और 5 years, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे सर। ठीक है सर, मैं अब आगे कर लेता हूँ इसको। सेक्शन 151 सर्विस एंड एक्सटेंशन गवर्न। सेक्शन 151 के बारे में बताया, गवर्न प्रोसीजर फॉर सर्विंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 अलाउ एक्सटेंशन of limitation period by commissioner if sufficient cause shown, extension must be granted before expiry of original period। सेक्शन 148 ए के बारे में हमने भी डिस्कशन किया ही आपसे कि इसमें एक प्रोसेस ये है कि जब डिपार्टमेंट 148 ए इशू करेगा, उसके बाद सॉरी 148 बी इशू करेगा शो काज नोटिस, 148 सी में हम अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे और 148 डी में असेसिंग ऑफिसर स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। तो 148 ए सब क्लोज ए में इशू शो काज नोटिस अंडर सेक्शन 148 बी गिविंग मिनिमम 7 days का टाइम होना चाहिए सर उसके लिए, और मैक्सिमम 30 days। कई केसेस के अंदर क्या किया गया, वो हम एक डिस्कशन भी करूंगा कि 1 अप्रैल 2021 से पहले जो एक्ट के अंदर डाला था कि इतने साल तक हम 148 इशू कर सकते हैं, उसके बीच में एक पीरियड आया कोविड। कोविड के पीरियड के अंदर हुआ क्या कि डिपार्टमेंट ने काफी केसेस में नोटिस इशू कर दिए, बट वो लेट नोटिस इशू किए गए ड्यू टू कोविड। जिनके केसेस 31 मार्च 2021 तक इशू होने थे, उसमें डिपार्टमेंट ने टाइम एक्सटेंडेड पीरियड डाल दिया 30 जून 2021 तक का। बट जैसा कि आपको पता है कि एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ गई थी
कि 3 years और 10 years, उसमें कंडीशन डाल दी गई लेस देन 50 lakhs एंड मोर देन 50 lakhs। तो काफी केसेस के अंदर डिपार्टमेंट को बड़ा रिट पेटिशन फाइल हुई काफी केसेस के अंदर। और डिपार्टमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, काफी हाई कोर्ट्स के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, काफी हाई कोर्ट्स के द्वारा 148 के जो नोटिस इश्यू किए गए, वो सारे के सारे केसेस को डिपार्टमेंट ने डिलीट कर दिया या उनको खत्म कर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट के करेंगे। तो मैं साथ साथ ये कवर कर रहा हूँ कि 148 बी गिविंग मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 30 days कंसीडर रिप्लाई अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन सी एंड पास स्पीकिंग ऑर्डर बिफोर इश्यूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148। इसमें फिर अप्रूवल आ गई कि अप्रूवल 3 years, जो हमने भी डिस्कशन किया था 3 years और मोर देन 50 lakhs के लिए, ये हमने अभी डिस्कशन किया है। इसमें एक अप्रूवल मस्ट शो अप्लीकेशन ऑफ माइंड विद रीजंस नॉट मैकेनिकल यस। इसके अंदर ये डाला गया है कि असेसिंग ऑफिसर, हायर अथॉरिटी से स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो भी है, कमिश्नर और चीफ कमिश्नर्स को सेक्शन 151 के अंदर एक परफॉर्मा दिया गया है डिपार्टमेंट ने, जिसके अंदर अराउंड 23 कॉलम्स दिए गए हैं। नेम ऑफ द असेसी, एड्रेस ऑफ द असेसी, पेन ऑफ द असेसी, वेदर रिटर्न फाइल्ड और नॉट, इफ फाइल्ड देन, ये इसमें काफी सारे परफॉर्मा दिए गए थे। और वेदर एनी असेसमेंट हैज ऑलरेडी बीन डन इन दिस केस, इफ यस, तो उसके अंदर क्या है। तो उसमें जो असेसिंग ऑफिसर को अपना सेटिस्फेक्शन नोट डालना होता है कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, मेरा ये इंफॉर्मेशन था। उसके बाद कमिश्नर्स को भी अपने कमेंट पास करने होते हैं, चीफ कमिश्नर्स को और कमिश्नर्स को। वो सिर्फ ये रहता है सेटिस्फाइड विद, और काफी सारे केस लोग सर आप म्यूट हो। सर आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। पीपीटी शो हो रही है सर? नहीं, पीपीटी नहीं शो हो रही सर। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ सर। जी सर। एक मिनट सर। आ रही है सर? अब शो हो रही है सर? जी सर, पीपीटी शो हो रही है। तो अब हम आते हैं, जैसे कि मैडम ने बताया था, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है। इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 148 एंड 148A हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड in the explanation 1 of section 148. Any information in accordance with the risk management strategy formulated by the board. देखिए, डिपार्टमेंट ईयर टू ईयर, 1 year 2 years के लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग 148 के नोटिस इशू कर सकता है डिपार्टमेंट। और इसके अंदर सेकंड है कि एनी ऑडिट ऑब्जेक्शन दैट असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि ऐसा कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन, सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है,
जो डिपार्टमेंट की भी ऑडिट करता है, अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की होती है, उसने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगाया जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर्स ने कोई इशू था, वो इशू डिस्कस नहीं किया, या उस पर डिस्कशन करने के बाद उस पर प्रॉपर अपनी रिकमेंडेशन नहीं दी, या उस पर एडिशन नहीं करी, या कुछ भी जो भी था, उसके बेस पे भी डिपार्टमेंट अगर कोई उसमें आता है तो उसमें 148 का नोटिस इशू कर सकता है। नेक्स्ट है एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर डीटीए। को कोई बाहर की जो डीटीए जो हमारी होती है उनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेस पे भी 148 किया जा सकता है। एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द असेसिंग ऑफिसर अंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 135A। 135A के अंदर भी कोई फॉरेन हमारी ट्रांजेक्शन होती है। अब जैसे काफी पीछे वो चला भी था कि किसी की भी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इनकम है, वो अपनी डिक्लेयर करे अपडेटेड रिटर्न के थ्रू भी। तो ऐसी भी कोई अगर इनकम है, वो भी उस पर भी डिपार्टमेंट 148 का नोटिस इश्यू कर सकता है। एनी इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर एक्शन इन कंसिक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए ट्रिब्यूनल और कोर्ट। अगर किसी ट्रिब्यूनल ने या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डायरेक्शन दी जाती है, तो उसके बेस पे भी 148 किया जा सकता है। अब हम डिस्कशन करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी नाइदर डिफाइंड इन सेक्शन 148 नॉर नोटिफाइड बाय द सीबीटीटी। देखिए सेक्शन 148 के अंदर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। हर बार हमेशा सीबीटीटी की इंस्ट्रक्शन आती है कि आपको किस तरह से, डिपार्टमेंट की इंटरनल इंस्ट्रक्शन आती है कि किस बेस पे आपको 148 करना है। इन द अबव सीबीटीटी इंस्ट्रक्शन द क्राइटेरिया फॉर implementation of risk management strategy has been defined for AY 2015-16, 2018-19, and assessing officer were directed to identify the following categories of information pertaining to assessment year 2015 to 18. Okay, sir. For uploading on the verification report upload VRU functionality on inside portal, information from any other government agency। डिपार्टमेंट के पास काफी एजेंसीज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन पास होती है, जीएसटी के द्वारा होती है, और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा अगर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, एनसीएलटी के द्वारा इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, तो उसके बेस पे भी डिपार्टमेंट 148 करता है। कि डिपार्टमेंट ने 148 के लिए हर साल एक क्राइटेरिया भी डालता है कि कुछ केसेस के अंदर अगर ये एसएससी के मिलता है तो उसमें 148 कंपलसरी बेसिस पे डिपार्टमेंट कर सकता है। जिसमें एक है एक्सीडिंग ₹25 लाख। अगर कोई एडिशन पिछले सालों में एडिशन हुई है एसएससी की, और सेम इशू इस साल में भी आता है, यानी कि केस इन्वॉल्विंग एडिशन इन एनी असेसमेंट ईयर ऑन ए रेकरिंग इशू ऑफ लॉ और फैक्ट, किसी पिछले साल के अंदर कोई सेम इशू इस साल में भी है, तो उसके बेस पे भी 148 नोटिस इशू कर सकता है डिपार्टमेंट। जैसा कि मैं इसमें लिखा हुआ एक्सीडिंग ₹25 लाख इन 8 मेट्रो चेंज चार्जेस एट अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, while at other charges, और अदर देन जो सिटीज हैं उसमें अगर 10 लाख से ज्यादा की कोई एडिशन हुई है और इस साल में भी वही एडिशन सपोज करो दिख रही है असेसिंग ऑफिसर को, तो उस पर भी 148 इशू कर सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग के जो केसेस मोर देन 10 करोड़ रुपीज है, उसमें भी 148 इशू कर सकता है। नेक्स्ट है एंड वेयर सच एन एडिशन, जिस तरह की जैसे हैज बिकम ए फाइनल एज नो फर्दर अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द असेसमेंट। ऐसी कोई एडिशन हुई है जिसमें एसएससी ने फर्दर अपील भी नहीं फाइल करी है, सीआईटी अपील या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में, तो उन केसेस में भी 148 डिपार्टमेंट कर सकता है। हैज बीन कंफर्म्ड एट एनी स्टेज ऑफ अपीलेट प्रोसेस इन फेवर ऑफ रेवेन्यू एंड एसएससी हैज नॉट फाइल्ड फर्दर अपील, हैज बीन कंफर्म्ड एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ अपील इन फेवर ऑफ रेवेन्यू और सब्सिक्वेंटली even if further appeal of SSC is pending against such order. No further CBDT circular has been issued explaining the criteria for implementation of risk management strategy for reopening other AY. नेक्स्ट है कि 148 किस केस में इशू हो सकता है, डीम्ड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 148। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन किया था कि डिपार्टमेंट को बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 जो प्रोसेस है 148 ए बी सी डी का जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, बट कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर डिपार्टमेंट डायरेक्ट भी 148 का नोटिस इशू कर सकता है। वो जिसमें उनको
वन एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं होती कि 148 बी सी डी की उसमें वो एसएससी को अपॉर्चुनिटी दें। वो डायरेक्ट नोटिस 148 भी इशू कर सकते हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं वो मैं आपके सामने भी डिस्कशन कर रहा हूँ मेरी पीपीटी के थ्रू। डीम्ड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 148 इन द केस of search under section 132 or requisition under section 132A और सर्वे अंडर सेक्शन 133A एक्सेप्ट टीडीएस सर्वे। इसके अंदर टीडीएस सर्वे को छोड़ के अगर कोई डिपार्टमेंट सर्वे करता है या सर्च करता है या कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर 132 के अंदर आती है उसके बेस पे भी एंड अदर देन सर्च पर्सन केसेस 153C AO shall be deemed to have information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment। अगर कोई भी सर्च या सर्वे होता है तो उसके बेस पे डिपार्टमेंट डायरेक्ट 148 नोटिस इशू कर सकता है एसएफसी को। सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 132 व्हेन सर्च इज कंडक्टेड। देखिए एक छोटा सा, मैं ज्यादा इस पे नहीं लेंगे हम टाइम। जो 132 की सर्च कैसे बनती है, देखिए डिपार्टमेंट के पास काफी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। डिपार्टमेंट जब चाहे जिस पे चाहे सर्च कर देता है। परमिशन एडिशनल कमिश्नर या सॉरी परमिशन विद द परमिशन ऑफ डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन लेकर के डिपार्टमेंट कहीं पे भी सर्च कर सकता है जो भी उसकी जुडिक्शन के अंदर आती है। देखिए हमें ये लगता है कि प्रैक्टिकल इश्यू में आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के पास जो ये फोन है, जो सोशल मीडिया पे जितने हम एक्टिव हैं आज की डेट में, आप ये समझिए ये हम लोगों के एक ब्लास्ट है। 148 का जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशंस अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू डाटा अपना शेयर कर रहे हैं हम अपना। आप ये समझिए कि जो 148 का रीजन है या सर्च का जो रीजन होता है, ज्यादातर आप जो ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हम फ्रीक्वेंटली डिस्कशन करते हैं अपनी प्रॉपर्टी की सेल करी है, प्रॉपर्टी परचेज करी है, कहाँ से कैश आ रहा है, क्या जा रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आज मैं इंडोनेशिया घूमने गया हूँ, आज मैं श्रीलंका घूमने गया हूँ, आज मैं दुबई घूमने गया हूँ, लंदन घूमने गया हूँ, बट मैं आई एम फाइलिंग माई रिटर्न ऑफ रुपीज 6 लाख 7 लाख ओनली। तो डिपार्टमेंट ये देखता है कि ये खर्चा इतना कर रहा है, इसके पास सोर्स इनकम क्या है। तो डिपार्टमेंट अपनी रैकी कराता है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। आपको अगर ये लगता है कि आपका जीमेल, याहू मेल या कोई भी मेल आपका डिपार्टमेंट हैक नहीं कर सकता, तो डिपार्टमेंट कर सकता है। आप ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट काफी टाइम जाते रहते हैं, ऑफिसर्स के साथ बैठते भी हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीमेल पे का सारा व्हाट्सएप का डाटा जीमेल पे जाता है। जीमेल को डिपार्टमेंट सर्च करता है कि आपका क्या ट्रांजैक्शन हुई है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट के पास आ जाती है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सभी से ये है कि जो आपका डाटा है उसको ध्यान से शेयर करिए। आपका अब न्यू जो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी नेक्स्ट, उससे कि उसके अंदर आपको अपना आईपी एड्रेस भी डालना है। सब चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन आप फास्टली हम शेयर करते हैं सभी के साथ। तो ये ही रीजन होता है कि सर्च और सर्वे का। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करेंगे सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 132। व्हेन सर्च इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 132 द असेसिंग ऑफिसर कैन प्रोसीड assess or reassess the income of the person searched for any assessment year relevant to the period during which books of documents seized। देखिए 1 अप्रैल 2021 से पहले अगर किसी के यहाँ पे भी सर्च होती थी तो सर्च के लिए दो सेक्शन मेन लगते हैं, सेक्शन 153 एंड 153A एंड 153C। 153A कहाँ पे लगता है, कोई बताएगा मुझे कैसे, कहाँ पे 153A लगेगा और कहाँ पे 153C लगेगा? So 153C is applicable in case of the other person, राइट, and 153A in the general. But in the case of other person, 153C is applicable. वेरी गुड मैम। देखिए जिसके यहाँ पे सर्च होती है, जो मेन पर्सन होता है जिसके यहाँ पे मेन सर्च हुई है, सर्च जिस पे होती है उसके पास उसके ऊपर लगता है सेक्शन 153A। और सपोज करो मेरे यहाँ पे सर्च हुई, डिपार्टमेंट को मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली कि मैंने ये प्रॉपर्टी सो एंड सो परचेज की, पर्सन बी से या पर्सन सी से परचेज करी है, तो उस केस के अंदर 153C उस थर्ड पार्टी का होगा। अगर इन केस
इसके इसके लिए भी पीरियड मेंशन किया गया है कि 153 ए किस में लगेगा, और 153 जो मैंने आपसे डिस्कशन किया कि कितने साल तक 153 ए लगेगा, कितने साल में सी का रीओपन हो सकता है। तो इसमें टाइमिंग जो मेंशन की गई थी 6 ईयर्स के लिए 153 ए हो सकता है और 153 सी भी हो सकता है। देखिए ये काफी बड़ा वैसे चैप्टर है 153 ए सी का, इसके लिए अलग से एक वेबिनार होना चाहिए, क्योंकि 153 ए या सी में डिपार्टमेंट में काफी पहले क्या होता था कि टोटल 6 ईयर्स के लिए एक ही सेटिस्फेक्शन नोट इशू कर देते थे, जिसके बेस पे काफी सारी उनकी असेसमेंट ही डिलीट हो जाती थी बाद में सीआईटीपील या ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्योंकि उसमें एवरी ईयर्स के लिए लिखा हुआ है सेक्शंस के अंदर कि द असेसिंग ऑफिसर शुड इशू सेपरेट, शुड गिव सेपरेट सेटिस्फेक्शन नोट। तो एक ये काफी इसके अंदर रहा 153 ए और सी में कि असेसिंग ऑफिसर ने जो सेंटर सर्कल के अंदर जो असेसमेंट होती है, क्योंकि मेनली सर्च एंड सर्वे केसेस की जो असेसमेंट है इसके लिए स्पेसिफाइड ऑफिसर्स बनाए गए हैं जो सेंटर सर्कल के अंदर वो जो उनकी असेसमेंट करते हैं, बट वो एट द टाइम ऑफ गिविंग सेटिस्फेक्शन वो 6 के 6 साल की इकट्ठी सेटिस्फेक्शन जल्दबाजी के चक्कर, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होते हैं, मोर देन 500 1000 के आसपास कई बार केसेस हो जाते हैं एक एक या दो ऑफिसर्स के एक यूनिट के अंदर ही। तो उनको काफी करने के लिए उनको दिक्कत आती थी, तो वो वन टाइम में ही सेटिस्फेक्शन नोट दिया, बाद में वो प्रोसीडिंग्स काफी डिलीट हो गई थी। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सेक्शन 132 में सर्च हो जाती है, सर्च के बाद रीअसेसमेंट नोटिस आता है, इसके अंदर पीरियड 12 एंड 21 ये भी इसके लिए नहीं है। 148 में हम डिस्कस कर रीअसेसमेंट नोटिस, इफ इनकम एस्केप्ड असेसमेंट इन अर्लियर ईयर्स you can issue notice under section 148, however section 148 a does not apply, यानी कि जो ए बी सी डी की कंडीशन सर्च वाले केसेस के अंदर नहीं लगेगी। सर्च सर्वे रिक्वेशन हैज बीन कैरिड आउट और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 135 ए। एक एग्जांपल इसके अंदर दिया गया है, सर्च कंडक्टेड इन AY 2024 रिवील्स अनअकाउंटेड कैश and documents suggesting unassessed income in AY 2020-21. AO can issue section 148 notice for AY 2020-21 without following section 148A. Procedure must be complete 12 or 21 month. एक मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि क्या सर्च के अंदर कोई प्रॉपर्टी की डिटेल मिल जाती है या कैश मिल जाता है? देखो सर्च और सर्वे में थोड़ा सा मैं फर्क बता दूं आपको कि सर्च के केसेस में, सर्च में जो यूनिट होती है, जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, बिजनेस प्रेमाइसिस पे जा सकता है, असेस जो एसएससी है एसएससी के रेजिडेंस पे जा सकता है, और लोकर तक या जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे या जिसको भी रीओपन कराना चाहता है वो रीओपन कर सकता है, ओपन कर सकता है ड्यूरिंग सर्च। बट इन द केस ऑफ सर्वे, सर्वे लिमिटेड होता है, स्कोप होता है डिपार्टमेंट के पास। सर्वे के केसेस में 133 के अंदर जो सर्वे होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसएससी के रेजिडेंस तक नहीं जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के बिजनेस प्रीमाइसेस है वहां तक ही इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसमें कोई कैश अगर उसको मिलता है तो कैश को भी सीज नहीं करते, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी सीज नहीं करते, वो सिर्फ कलोन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो भी डायरी या लैपटॉप कंप्यूटर ईमेल जो भी डिपार्टमेंट को मिलता है वो सारा का सारा उसके अंदर क्लोन करके ले जाते हैं। ठीक है सर। अब सर्वे के अंदर मैं आपको बता देता हूं, इन द केस ऑफ सर्वे, सिंस सर्वे इज नॉट ए सर्च, रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 140 प्रोसीजर अप्लाइज, एओ मस्ट फॉलो इंक्वायरी। सर्वे के केसेस में हमने कई बार देखा गया है कि जो 148 ए बी सी डी का प्रोसेस डिपार्टमेंट करता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। AO must follow inquiry, show cause notice, reply, speaking order before issuing notice under section 148. Survey at XYZ reveals cash sales not recorded. एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था, सपोज करिए कि एक एसएससी है, उसके यहाँ से ड्यूरिंग सर्च या सर्वे एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले 60 लाख रुपीज के। क्या डिपार्टमेंट उस केस में, और वो एसएससी ने अपनी रिटर्न वाइल फाइलिंग हिज रिटर्न ही हैज नॉट डिक्लेयर्ड दैट प्रॉपर्टी, क्या उस केस में डिपार्टमेंट नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू कर सकता है? देखिए इंटरेक्शन वाला सेशन है, आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे,
एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। देखो, मैं आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक डिस्कशन पर्पज के लिए ही ये वेबिनार रखा गया है कि आपके क्या व्यूज हैं इस चीज पे, थोड़ा सा वो डिस्कशन करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलो So I मैं would बताऊं। like to put a light on. Yeah. यस Okay. मैम। So if it is survey, they can correct me if I'm wrong. If it is survey, I think they can just have access to the business records. So यस this मैम। kind of document, if it is strictly because as you mentioned, it has to be property document. So not sure if they can access it because during survey they only access your business records. If it is search, they enter into your other valuables as well, be it jewelry, be it other antiques or the property documents. Just correct me if I'm wrong and just put light on this. No ma'am, in survey also they can take your diary, property paper, they can scan the documents and they Okay. can issue notice under section 148 153 whatever applicable at that time. तो मैं आपसे Okay. डिस्कशन सिर्फ मेरा, मैं 60 लाख रुपीज का क्यों रीजन लिया गया मैंने, देखिए, एक जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कि मैं सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी थी 60 लाख रुपए की और मैंने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो डिस्क्लोज नहीं करी। तो देखिए, जो इसके सेक्शन के अंदर लिखा गया है, इनकम वर्ड यूज किया गया है, एनी इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम, कोई भी इनकम अगर मैंने, देखिए मेरी प्रॉपर्टी है 60 लाख रुपए की, दैट इज नॉट माई इनकम, दैट इज द परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू। सपोज करो मैंने 2015 में 40 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और बाद में 10 साल के बाद, 6 साल के बाद प्रॉपर्टी को सेल कर दिया 60 लाख रुपए के अंदर, और 40 लाख इंडेक्सेशन कोर्स के बाद वो प्रॉपर्टी 60 लाख वाली की वैल्यू 65 लाख रुपीज हो गई। तो इनकम एस्केपमेंट तो हुआ ही नहीं मेरा, क्योंकि प्रॉपर्टी की तो वैल्यू 65 लाख रुपीज बेची मैंने, 60 लाख रुपए में है। तो इन दैट केसेस नोटिस अंडर सेक्शन 148 अगर ऑफिसर इश्यू कर देता है, क्योंकि काफी कोर्ट्स ने ये बोला है कि बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 द असेसिंग ऑफिसर शुड इंक्वायरी, आपको असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी करनी चाहिए कि 148 इशू करने से पहले मुझे देखना है कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू परचेज, प्रॉपर्टी परचेज कब करी थी। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास तो विदाउट सर्च के भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस से काफी इंफॉर्मेशन आती है कि 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर कोई सेल परचेज करता है, वो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन विंग को, जो रजिस्ट्रार होते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के। तो इन दैट केसेस अगर इनकम एस्केपमेंट है ही नहीं तो मेरा 148 होना नहीं चाहिए। तो 148D का जो ऑर्डर पास करना है वहां पे भी प्रोसीडिंग ड्रॉप की जा सकती है अगर आप प्रॉपर रिप्लाई दें। तो मेरा मानना यह है कि जो डिपार्टमेंट 30 डेज का टाइम देता है आपको रिप्लाई करने के लिए, 7 to 30 डेज का टाइम देता है, तो जल्दबाजी में भी कोई रिप्लाई सबमिट ना करें, प्रॉपर उसको समझें, उसके बाद ही रिप्लाई करें। काफी केसेस के अंदर वन, हालांकि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग ड्रॉप नहीं करता, लिटिगेशन में मैटर जाते हैं, जो लेजिस्लेचर का मेन इसको टाइमिंग को कम करने का था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो 148 का अगर नोटिस इशू कर दिया तो फिर वो कहते हैं कि भाई आप अपील में जाए, ट्रिब्यूनल देखे, हमें क्या मतलब है, हमें तो नोटिस इशू करना है, हमें तो करना है। तो मेरा मानना यह है बट कि काफी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी काफी, और गुजरात हाई कोर्ट में भी डिपार्टमेंट के बारे में कहा है। और गुजरात हाई कोर्ट के एक जज की मुझे, मैं पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, उन्होंने लिखा है कि द डिपार्टमेंट हैज बिकेम स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स कि डिपार्टमेंट के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन पोर्टल पे, जो इनसाइड पोर्टल के पास इंफॉर्मेशन आती है उसके बेस पे डिपार्टमेंट ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है, वो 148 का नोटिस इशू कर देता है। जबकि आप एक बात देखिए, डिपार्टमेंट के पास कई बार आप लोगों को या हमें एसएससी के नोटिस आते हैं, 131 का समन आता है कि किसी पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है डिपार्टमेंट को, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो दे देते हैं, उसके बाद भी 148 इशू कर देता है। 133(6) का नोटिस किसी केसेस में आता है तो उसमें हम रिप्लाई सबमिट करते हैं। आप एक सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें एक एआईएस आता है। एआईएस के अंदर काफी इंफॉर्मेशन हमारे से रेलिवेंट होती है, कई इंफॉर्मेशन हमारे से रेलिवेंट नहीं होती। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है तो उसमें आप रिप्लाई सबमिट करिए, क्योंकि नहीं तो डिपार्टमेंट उसके बेस पे भी आपका 148 इशू कर देता है। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने कि मेरी टोटल सेल पोर्टल पे दिखाई दे रही है 1 करोड़ रुपया, जबकि एक्चुअल मेरी सेल हुई है 70 लाख रुपीज।
जो 30 lakhs के थे वो मेरे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की वजह से मेरी टोटल सेल एज पर जीएस, जो कई बार पोर्टल जो एआईएस का पोर्टल है वहां पे वो माइनस करके उस परचेज सेल को नहीं दिखाता, तो उसके बेस पे भी डिपार्टमेंट 148 इश्यू कर देता है कि while filing your return you have declared your sale 70 lakh rupees, but as per AIS portal और GSTR portal the return is 1 crore, तो 30 lakhs का डिफरेंस है तो उसके ऊपर 148 नोटिस इशू कर देता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सभी प्रोफेशनल से ये है कि while filing your return आप AIS को प्रॉपर चेक करिए, रिस्क मैनेजमेंट का जो उसमें एक है रिपोर्ट्स वगैरह है उसमें जा करके देखिए कोई आपका नोटिस 1336 या 131 का नोटिस तो नहीं आया है तो उसका प्रॉपरली टाइमली आप कंप्लाई करिए ताकि आपका 148 का नोटिस इशू ना हो। अब हम चलते हैं रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन 132A, प्रोविजन सिमिलर टू सर्च। देखिए कई बार फ्लो में ना कुछ चीज रह जाती है, अगर कुछ रह जाता है बीच में तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए आप अनम्यूट करके अपने आप को, ठीक है सर। प्रोविजन सिमिलर टू सर्च बट फॉर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हेल्ड बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और थर्ड पार्टीज। सपोज करो किसी बैंक के द्वारा, बैंक एक एसटीआर रिपोर्ट भेजता है डिपार्टमेंट को, सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बोलते हैं उसको। जो रिपोर्ट भेजता है उसके अंदर कई बार ट्रांजैक्शन, जैसे हम कई बार बैंक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट के कैश विड्रॉ कर रहे हैं या कैश डिपॉजिट करता है, तो डिपार्टमेंट को कई बार ये लगता है कि बैंक को या किसी उसको इन्फॉर्मेशन वो डिपार्टमेंट को पास ऑन करता है, तो डिपार्टमेंट ये सोचता है कि भाई कोई बिलिंग का काम तो नहीं कर रहा है, एंट्री ऑपरेटर तो नहीं है, उसके बेस पे वो 148 कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट हैज बिकम स्लेव, दिस इज नॉट माय वर्ड, दिस इज वर्ड्स ऑफ जजेस। Reassessment power, material obtained can be used to reassess income under section 148 with the same time limit as such cases। टाइम थोड़ा स्पीडली जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे सर। देखिए एक आशीष अग्रवाल का जो केस आया था, मैं पीछे डिस्कशन कर रहा था, टोला जो आया था कि काफी सारे अराउंड 90,000 केसेस 148 के इशू हो गए थे, बाद में फिर उनको हाई कोर्ट्स ने इनवैलिड कर दिया था नोटिस को। बट आशीष अग्रवाल का केस आया जिसके अंदर डिपार्टमेंट को एक रिलीफ दिया गया कि जो नोटिस 1 अप्रैल 2021 से पहले इशू होने थे बट ड्यू टू कोविड नहीं इशू कर पाए, उसके अंदर 1 अप्रैल 2021 के अंदर जो सेक्शन 148 ABCD का फॉर्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो नोटिस इशू किए जाएं ताकि इनवैलिड नोटिस को रेगुलराइज किया जाए। इसमें मैं स्पीडली पढ़ देता हूं। रूलिंग सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 147 149 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 की होल्डिंग्स नोटिस इशूड अंडर ओल्ड लॉ आफ्टर 1 अप्रैल 2021 आर इनवैलिड। सेक्शन 148A प्रोसीजर मैंडेटरी फॉर ऑल नोटिस आफ्टर 1 अप्रैल 2021। ऑल टाइम लिमिट 3 to 10 years रिप्लेस्ड बाय 3 to 5 years। काफी सारे केसेस के अंदर जिसमें 10-10 साल थे उसमें 50 लाख रुपीस की आने के बाद वो काफी सारे केसेस को इनवैलिड होने की वजह से ड्रॉप करना पड़ा डिपार्टमेंट को। देखिए मैं आपके साथ ही पीपीटी शेयर कर दूंगा क्योंकि अगर मैं ये सारे केसेस ला आपसे डिस्कशन करूंगा तो काफी सारे इश्यूज रह जाएंगे। जी कैन ड्राइव शराफ का मैंने आपको केस के बारे में डिस्कशन किया कि चेंज ऑफ ओपिनियन ओनली ऑन द बेस ऑफ, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको डिस्कशन करना चाह रहा हूं। सपोज करो मेरे केस हुआ 148 या 143 में मेरी ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है और उस असेसमेंट के अंदर मेरा कोई इशू था, सपोज करो लोन था या अनसिक्योर्ड लोन था या कोई भी इशू था, डिपार्टमेंट ने मुझे 142(1) का नोटिस दिया और 142(1) के रिस्पॉन्स के अंदर मैंने प्रॉपर रिप्लाई फाइल किया। द असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्टेड दैट, क्योंकि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि द असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड, इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज सेटिस्फाइड मींस देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो जी कैन ड्राइव स्टाफ के अंदर कहा गया कि कई बार हुआ क्या कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आई कि इस पार्टी का अनसिक्योर्ड लोन बोगस है, जिस पार्टी से इन्होंने लोन लिया है या दिया गया है, तो उसके बेस पे डिपार्टमेंट 148 किया। एसएससी ने रिप्लाई सबमिट किया कि इस इशू पे ऑलरेडी मेरी असेसमेंट हो चुकी है तो मेरा 148 ना किया जाए। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन 148 नोटिस कैन नॉट बी इशूड। जी कैन ड्राइव शाफ्ट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। AO must have definite material showing escapement. This principle survived Finance Act 2021 and continues to guide interpretation। देखिए ये आज की जो 2021 से पहले भी था और आज की डेट में भी ये सेक्शन ये जी कैन ड्राइव स्टाफ का अप्लीकेबल है।
DCIT versus Mitchell इसमें clarified that reopening based on same facts already considered in original assessment is invalid. New information must relate to escapement, not mere re-evaluation. जैसे ही मैंने बताया कि अगर वो ऑलरेडी मेरा असेसमेंट हो चुकी है उस इशू पे, दोबारा से उस पे असेसमेंट नहीं हो सकती. ACIT versus MK Sharma. Supreme Court held that mere audit objection without specific information suggesting concealment is insufficient. Audit report must point out specific escapement with supporting material. सेक्शन 149 जैसे अभी हमने डिस्कशन भी किया था, स्पीडली इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं. इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट 149(1) नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट अनलेस द केस फॉल्स अंडर क्लोज बी. अगर 50 लाख से नीचे है तो 3 साल तक का मैक्सिमम केस 148 किया जा सकता है. विद इन 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर वेयर द AO हैज इन इट्स पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और एविडेंस विच रिवील that income chargeable to tax which has escaped assessment amounts or is. वही मैं जो आपको बता रहा था कि असेसिंग ऑफिसर के पोजीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट है या कोई इंफॉर्मेशन है या डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है जिसमें ये पता चल रहा है कि इनकम एस्केपमेंट मोर देन 50 lakhs है, he can issue notice under section 148 with the prior approval of the specified authority. स्पेसिफाइड अथॉरिटी मैंने आपसे डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी अगर 3 लाख से नीचे है तो उसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल ली जाएगी. अगर मोर देन 50 lakhs है तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल जो भी उस समय उनका जो ऑफिसर हायर अथॉरिटी है. इसमें डेफिनेशन दी गई है एसेट्स की. सर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सर आपको? हाँ जी दिख रही है जी. हाँ जी. ओके ओके सर. तो इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मींस क्या है? एसेट expenditure in respect of transaction or in relation to an event occasion, an entry or entries in the books of account. किसी की books of account के अंदर any section 68 69 की जो एडिशन करता है डिपार्टमेंट, इस पे भी एक ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जैसे कैश डिपॉजिट है सेक्शन 69 के अंदर डिपार्टमेंट वो करता है, तो उसके बारे में एन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लास बी एसेट शैल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी. एसेट्स की डेफिनेशन दी गई बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ शेयर्स सिक्योरिटीज लोन एंड एडवांसेस डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट. सेक्शन 149(1)(a) provide that if income escapement in the form of an asset expenditure in relation to an event occasion of rupees 50 lakh or more is in relation to more one assessment year within extended period of 10 years, maximum 10 years तक वो कर सकता है. अब हम आ जाते हैं अमेंडेड टाइम लिमिट आफ्टर फाइनेंस एक्ट जो 2024 आया है. 1 सितंबर 2024 के बाद क्या चेंजेस आए हैं सेक्शन के अंदर, वो एक बार डिस्कशन करते हैं. फॉर सेक्शन 149 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024. सेक्शन 149 में क्या चेंज किया? नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इफ 3 years and 3 months. पहले 3 years ओनली 3 years था, अब उसको 3 years 3 months कर दिया गया है कि 148 का 3 years के अंदर कीजिए और 3 months के अंदर उसका 148 आप नोटिस इशू कर सकते हैं. नेक्स्ट, if 3 years have 3 months have elapsed from the end of the relevant assessment year unless the class, जो ये relevant assessment year वही काउंट होगा जो 1 सितंबर 2024 से पहले था हमारा. सपोज करो, जैसे मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं अगर कोई नया प्रोफेशनल्स अगर इसमें जुड़े हैं. सपोज करो असेसमेंट ईयर 2022-23 है. असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न हमारी कब तक जा सकती है? 31 मार्च 2024 तक. तो 3 years कब तक लगेंगे हमारे इसमें? बताइए सर, एक बार कोई बता सकता है दोबारा से? चलो 2022-23 का 31 मार्च असेसमेंट ईयर 2022-23 की जो रिटर्न फाइल हो सकती है 31 मार्च 2024 तक हो सकती है. तो 3 years कहां से काउंट होंगे? 2024 से 3 years प्लस अगर करेंगे तो 2027 तक जा सकता है असेसमेंट ईयर 2022-23 का नोटिस. नेक्स्ट है if 3 years and 3 months but not more than 5 years and 3 months have elapsed from the end of the relevant assessment year unless the assessing officer has in possession books of account or other documents. इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है
ज्यादा चेंजेस, थोड़ा सा चेंज सिर्फ ये किया गया है, 3 years 3 months and 5 years 3 months. No notice of show cause under section 148A shall be issued for the relevant assessment year if 3 years have elapsed from the end of the relevant assessment year, unless the case fall under B category. If 3 years but not more than 5 years have elapsed, ये कुछ इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा यही चेंज है, 3 years 3 months 5 year 3 months का। मैंने एक एग्जांपल भी दिया गया है इसके अंदर, सेक्शन 149 का कब से कब तक का नोटिस इश्यू कर सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ देता हूं, एक सेक्शन 153 और सी का भी इसमें इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) containing grandfathering clause as per the first provisions to section 149(1) of the act applicability works effect from 1st April 2021. No notice under section 148 of the act can be issued at any time in a case for the relevant assessment year beginning or before 1st April 2021 if the time limit for issuing notice under section 148 or section 153A or section 153C as specified under clause B of unamended 149(1) or section 153A 153C act as the case may be had expired at the time referred। ये जो टेबल दी गई है इसके अंदर ये डाला गया है कि किस साल का केस कब तक टाइम बार हो सकता है, कब तक नोटिस उसमें इशू किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसमें, सपोज करो 2018-19 का असेसमेंट ईयर लेता हूं कि 2018-19 का जो असेसमेंट है कब तक हो सकती है, 18-19 की जो सॉरी 16 असेसमेंट है 16-17 की ले लेता हूं। 16-17 की जो टाइम बारिंग है जो हमारा है 31/3/2022 तक हम इसको कर सकते हैं। ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। अब जो लास्ट है जैसे 2021-22 का, 2021-22 की रिटर्न हमारी कब तक जा सकती है, 31 मार्च 2023 तक। तो उसमें 5 साल हमारे कब तक काउंट होंगे, 2028 तक जो इसमें डला हुआ है। The table is not factoring possibility of notice which could have been issued under section 153A or 153C as per law prior to Finance Act 2021. It may be noted that as per provision of section 153A(C), देखो ये इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो अभी प्रोविजन है 5 years 3 months और 3 year 3 months, बट 1 सितंबर 2024 से पहले के जो प्रोविजंस हैं, इन केस किसी केस में अगस्त 2024 तक सर्च हो जाती है तो उस केस के अंदर पुराना प्रोविजन ही लागू होगा, ना कि 1 सितंबर 2024 वाला। इसके अंदर ये बताया गया है। Another view on the interpretation of the first proviso of section 149, इसमें और में आपको क्लियर हो जाएगा। Assessment for assessment year 2021 and 20 years prior to thereto can, even under the new regime, be reopened only up to 6 years and not 10 years at the time limit for issuance of notice under section 148 has expired। ठीक है सर, ये थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। Case cannot be reopened under the new reassessment scheme search under section 132 requisition is prior to 1st April 2024। जो सितंबर 2024 से पहले अगर कोई सर्च हुई है उसमें पुराने प्रोविजन लगेंगे, जो सितंबर 2024 के बाद सर्च लगी है उसमें नए वाला प्रोविजन लगेगा 5 years and 3 years 3 months वाले। जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 149 वो हमने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है कि मिनिमम 7 days का टाइम है, मैक्सिमम 30 days का टाइम है। अगर एसएससी कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, सपोज करो 30 दिन का टाइम दिया गया, 30 दिन के अंदर रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाता और वो एक टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करता है, तो जो टाइम दिया गया है एक्सटेंशन के बाद उसके 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिक्वेस्ट वाज गिवन। सर आई हैव वन क्वेरी हियर। बताइए सर। वो मेरे एक केस में एसएससी को नोटिस जारी हुआ अक्टूबर 2023 को। जी सर। हाँ जी, उसने सभी जवाब दे दिया और उसके बाद में उसे अक्टूबर 2024 में 132A की रिक्विजिशन इशू की गई। जी सर। आफ्टर 1 सितंबर 2024। जी सर। और उसका ब्लॉक असेसमेंट का उसको नोटिस आया 6 years and 7 months का। देखिए सर, मैं आपको यही बता रहा हूं कि अक्टूबर मंथ के अंदर डिपार्टमेंट ने इतने नोटिस इशू कर दिए जल्दबाजी के चक्कर में, जबकि एक्ट के अंदर ये लिखा गया है
कि 1 सितंबर से पहले किसी केस में अगर सर्च हुई है तो पुराने प्रोविजंस ही लगेंगे, नया प्रोविजन 3 इयर्स 3 मंथ्स 5 ईयर 3 मंथ्स वाला नहीं लगेगा। तो इसमें ब्लॉक असेसमेंट का जो जो उन्होंने इशू किया, मुझे असेसमेंट भी कर दी, वो मतलब इट इज चैलेंजेबल। बिल्कुल चैलेंजेबल है सर। 1 सितंबर आपकी क्या 158 में हुई है असेसमेंट फिर? 158 बीसी में हुई है जी। नहीं सर, 158 बीसी में नहीं होनी चाहिए थी आपकी। 148 में होनी चाहिए थी ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 1 सितंबर से पहले की आपकी है तो वो उसी उसी पुराने उसमें ही होगी सर, नए वाले में नहीं हो सकती। मेरा तो एक्चुअली ऐसे हुआ ना, मेरा तो उसने मतलब उसको जब नोटिस आया अक्टूबर 2023 में, उसने सभी का सभी जवाब दे दिया, उसका सभी सोर्स एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक साल तक उन्होंने जी जी जानबूझकर पेंडिंग रखा जी जी डिपार्टमेंट जी ने। जी और डिपार्टमेंट ने उसको 10 अक्टूबर 2024 को 132 सर, ए की बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेजिशन फाइल किया। बिल्कुल, आप ही इस पॉइंट को आप चैलेंज कर सकते हैं सर। हाँ जी, ओके 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 ओके। नेक्स्ट है सर हमारा अप्रूवल फॉर रीओपनिंग अंडर सेक्शन 151। देखिए, जो पुराना सेक्शन था डिपार्टमेंट को दोबारा से फिर यही याद आया कि पहले काफी केसेस के अंदर डिपार्टमेंट के नोटिस इनवैलिड हो गए, ओनली ऑन द बेसिस कि किसी केस में, जिस केस में चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी थी उन्होंने प्रिंसिपल कमिश्नर की ले ली, जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर की लेनी थी उसमें चीफ कमिश्नर की ले ली, या एडिशनल कमिश्नर की परमिशन ले ली। उसकी वजह से काफी सारे केसेस इनवैलिड हो गए। तो डिपार्टमेंट ने 1 सितंबर 2024 और न्यू जो एक्ट आया उसके अंदर भी जो परमिशन के लिए, पहले उनको लगा कि नोटिस इशू करने के लिए बड़े ऑफिसर हायर अथॉरिटी की जरूरत है, तो उन्होंने प्रिंसिपल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर को, या डीजीआईटी जीसीसीआईटी जो इसमें दिया गया उसको रखा गया था। बट 1 सितंबर के बाद उन्होंने डाल दिया इसमें एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर से भी अगर परमिशन लेंगे तो उसके बेस पे भी असेसमेंट 148 या 158 किया जा सकता है। ये स्पीडली में पढ़ देता हूँ। अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड 151 वेयर 3 इयर्स और लेस हैव elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, पीसीआईटी का जो पुराना था, वेयर 3 इयर्स हैव elapsed फ्रॉम, डाल दिया डीजीआईटी का। इन केस वेयर रीअसेसमेंट इज इनिशिएटेड ऑन द deemed information search requisition and survey, no reassessment order shall be passed by an AO। जिस केस में सर्च वगैरह हो जाती है उसमें ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे का लेवल का ऑफिसर पास नहीं करेगा, या उस एडिशनल कमिश्नर की उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रीअसेसमेंट बेस्ड ऑन सर्च इन केस ऑफ अदर पर्सन 153C फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए आपको वो मैंने जो आपको बताया था सारा वही है सर 153C का अप्रूवल के लिए सर। टाइम काफी कम है। इंफॉर्मेशन भी सजेस्ट दैट इनकम है चार्जेबल टू टैक्स, ये सारा सेक्शंस 148 के बारे में ही ये केस ला का दिया गया है। सीआईटी कैलविनेटर का जो आया था चेंज ऑफ ओपिनियन के लिए, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, उस कैलविनेटर केस को अभी सुप्रीम कोर्ट का इस केस के पीपीटी के अंदर डिस्कशन किया गया है। इसमें की प्रिंसिपल्स में आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ कि रीअसेसमेंट के लिए आपके पास मेटेरियल, टेंजिबल मेटेरियल होना चाहिए। विदाउट मेटेरियल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ही डिपार्टमेंट 148 नोटिस इशू नहीं कर सकता। चेंज ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकती कि ऑलरेडी किसी केस में असेसमेंट हो चुकी है बट फिर भी डिपार्टमेंट उस पर 148 कर देता है। द पावर ऑफ रीअसेसमेंट इज नॉट ए पावर ऑफ रिव्यू। कुछ इसमें जो अभी थोड़ा सा ऊपर डिस्कशन किया था वही है, वेदर द फॉलोइंग लीगल पैरामीटर टेस्ट विच वर यूज टू डिटरमाइन द वैलिड रीजन टू बिलीव अंडर ओल्ड लॉ विल स्टिल बी एप्लीकेबल अंडर न्यू रीअसेसमेंट। ये इसके अंदर ये बताया गया है कि जो सेक्शन एक सॉरी 1 अप्रैल 2021 से पहले काफी केसेस के अंदर चेंज ऑफ ओपिनियन, रीजन टू बिलीव, क्या ये चीजें न्यू अमेंडमेंट के बाद भी एप्लीकेबल रहेंगी? तो काफी कोर्ट्स ने जजमेंट में दिया है कि वो जो पुरानी चीज है वो आत्मा थी 148 की, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आज की डेट में भी अप्लीकेबल रहेगी। टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए, वेदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिकंसिडरेशन और मार्केट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, वेदर जुडिशियल कंसेप्ट चेंज ऑफ ओपिनियन, नॉन एग्जिस्टेंट ट्रांजेक्शन डिफेक्टिव, कोई इनकोरेक्ट इंफॉर्मेशन है बट डिपार्टमेंट उसको नोटिस इशू कर देता है। असेसिंग ऑफिसर को बिफोर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड का जो रूल है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। शो काज नोटिस 148 बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर सीकिंग डिटेल्स, रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी। फिशिंग इंक्वायरी के लिए ही 148 नहीं किया जाना चाहिए। ऑफिसर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद ही 148 का नोटिस इश्यू किया जाए। 148D प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर पास होना चाहिए। एक मैंने थोड़ा सा ये बनाया था कि 148A का नोटिस अगर आता है तो
वो किस तरह से आएगा, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। एक एक इशू प्रैक्टिकल इशू मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था। किसी भी केसेस के अंदर 148 के अंदर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, अराउंड 70 केसेस के अंदर प्रोसीजर लैप्स होता है डिपार्टमेंट का। आप प्रोसीजर के ऊपर जाइए, देखिए फैक्ट्स ऑफ द केस एक बात है, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ, मेरा मानना ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ भी बहुत बड़ी चीज है। आप 148 जब डिपार्टमेंट आपको इशू करता है तो आपको कुछ चीजें चेक करनी है उसके अंदर, कि मेरा जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास थी नहीं थी, प्रॉपर इंक्वायरी डिपार्टमेंट ने की नहीं की, जो मैंने सबमिशन 148C के अंदर दिया गया है क्या मेरा डिपार्टमेंट ने प्रॉपर उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, वो सारी की ओनली। और 148D का ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर पास होना चाहिए। ठीक है सर। एक क्वेश्चन मैं छोटा सा इसमें ये भी ले लेता हूं आपसे, कि 148D की रेमेडी क्या है इन केस 148D पास कर देता है डिपार्टमेंट, तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना चाहिए अगर मेरे फेवर में 148D नहीं होता तो? क्या मुझे अपील फाइल करनी चाहिए या क्या, और उसके क्या रेमेडी होती है? देखिए, अगर 148D का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि टाइमिंग कम है। 148D का अगर स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं होता तो उसके लिए मेन देखिए, या तो रिट रिट फाइल कर रिट सकते फाइल हो हैं सकती है, रिट फाइल आप। हो रिट सकती फाइल है। रिट रिट ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग भी रिट फाइल कर सकते हैं आप। हाँ जी। देखिए सीआईटी अपील में आप डायरेक्ट जा नहीं सकते, क्योंकि जो 246 का सीआईटी अपील का परफॉर्मा है वो उसमें चीजें अलाउ नहीं होती। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गलत है तो आप ट्राई 154 के लिए अगर कर सकते हैं, अगर कुछ केसेस के अंदर 154 में भी रिलीफ मिला है कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। एक एक मैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मैं आपको कह रहा था कि एक तो जब आपको अर्जेंटमेंट की जरूरत होती है तो अर्जेंटमेंट डालिए, ऐसा नहीं कि आप टाइम, सपोज करो मेरे आज की डेट है तो उसमें अर्जेंटमेंट डालना जरूरी है। आज की डेट में एक या दो हेयरिंग के लिए देते हैं, उसके बाद एक्सपार्टी नोटिस कर दिया जाता है, असेसमेंट कर दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। ई प्रोसीडिंग्स यहां से जाएगी। ये नोटिस अंडर सेक्शन 148 है, इंटीमेशन कंडक्टिंग इंक्वायरी जो मैंने पीछे डिस्कशन किया था उसमें मिनिमम 7 days to 30 days का टाइम डिपार्टमेंट के अंदर दिया गया है, क्योंकि जब कोविड का पीरियड आया डिपार्टमेंट ने काफी नोटिस के अंदर मैक्स मिनिमम 5 days का टाइम दिया था, तो वो भी काफी केसेस, क्योंकि जब एक्ट के अंदर लिखा गया है कि 7 days मिनिमम, मैक्सिमम 30 days इसके लिए होने चाहिए। ये रिप्लाई वगैरह के लिए जो डाल दिया गया है। सर मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा क्योंकि अभी टाइम कम है, एक दो केसेस भी मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा था। देखिए एक बोगस परचेज का काफी वो चला हुआ है आज की डेट में, कि काफी केसेस के अंदर डिपार्टमेंट सर्वे या सर्च करता है, उसमें जिसके यहाँ सर्च हुई है वो असेसी ये बोल देता है कि मैं, मेरा तो काम ही बिलिंग का है, मैं तो एंट्री ऑपरेटर हूँ, मैंने जेन्युइन परचेज ना जेन्युइन परचेज करता हूँ ना जेन्युइन मेरी सेल होती है। तो उन केसेस के अंदर भी डिपार्टमेंट में हाई कोर्ट ने काफी डिसीजन दिए गए हैं कि सपोज करो किसी ने इंफॉर्मेशन, ये सपोज करो मैं ही हूँ, मैं मेरे यहाँ सर्च हुई और मैंने बोल दिया कि मैंने बी पार्टी को ना तो कोई परचेज की है ना मेरी कोई सेल हुई है उनसे, मैंने सिर्फ बिलिंग का ही काम किया है। तो उन केसेस के अंदर हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, उसके अंदर हमें मेनली अपनी सेल प्रूव करनी चाहिए कि हमारी, जब डिपार्टमेंट सेल अगर कंसीडर कर रहा है तो परचेज को भी, बिना परचेज के तो मैं सेल कर ही नहीं सकता, तो आपको वो जस्टिफाई करना होता है उस चीज के लिए ना। काफी केस लाए इसमें, हाजी मोहम्मद का एक केस आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसके अंदर ओनली जो प्रॉफिट था सिर्फ उसी की एडिशन की गई। मेरा भी अभी 2-3 दिन पहले ये केस हुआ था जिसमें 15 करोड़ 10 लाख रुपए की नया बाजार के अंदर यहाँ सर्च हो गई थी। इसमें 15 करोड़ एक पार्टी ने बोला कि उससे परचेज 15 करोड़ 10 लाख रुपए की परचेज की गई थी। बाद में मैंने ये प्रूव किया कि मेरी बोगस परचेज नहीं थी और मेरी जेन्युइन सेल है, और डिपार्टमेंट विदाउट रिजेक्टिंग माई बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेरी परचेज को बोगस नहीं कर सकता और मेरी सेल को बोगस नहीं कर सकता। तो उस केस में मेरा ना ओनली जो प्रॉफिट रेशियो था 0.50, यानी कि 2 लाख रुपए की सिर्फ एडिशन हुई। बट डिपार्टमेंट कई बार केसेस में ना पूरी की पूरी परचेज डिसअलाउ कर देता है,
तो वो काफी केसेस में रिलीफ मिला है एसएससी को। एक दो केस ला मैं आपको दे देता हूं इसके लिए। सेक्शन 69 की एक एडिशन है, एक केस ला है सैम फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये मैं केस लॉ भी आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर क्या हुआ कि द एसएससी हैड डिपॉजिट 4 करोड़ इन कैश आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। द सेम वाज कंसीडर्ड ड्यूरिंग स्क्रूटनी असेसमेंट एंड एडेड टू द एसएससी इनकम अंडर सेक्शन 69A। सीआईटी अपील डिलीटेड द एडिशन, बट सीआईटी अपील ने डिलीट कर दिया एडिशन, बट असेसिंग ऑफिसर ने उसको फिर दोबारा से रीओपन कर दिया। तो मेरा कहने का था चेंज ऑफ ओपिनियन का जो हमारा पीछे मैंने डिस्कशन किया था, वैसे केसेस के अंदर आप लोग वो ये प्ली चेंज ऑफ ओपिनियन के बेस पे 148 नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा इशू ये था, वैसे आज की डेट में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कि नोटिस 151 जाओ इशू करेगा या फाओ इशू करेगा। तो इसमें एज पर एक्ट तो फाओ को इशू करना चाहिए था, बट मैक्सिमम केसेस में लगभग लगभग जितने भी नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू होते हैं, सब केसेस में फाओ नहीं, सॉरी, जाओ ने ही नोटिस इशू किया है, जो कि नोटिस इनवैलिड काफी हाई कोर्ट्स ने वो कर दिए हैं। बट न्यू जो एक्ट आया है उसके अंदर जाओ और फाओ को हटा करके उसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दी है कि सारे नोटिस जाओ ही इशू कर सकता है। तो सर क्योंकि टाइम बिल्कुल क्लोज है, आपकी कोई क्वेश्चन आंसर इसमें कोई इससे रिलेटेड? ये मैंने केस ला आपको दिए हैं। हेलो सर, am I audible? यस सर, यस सर। मनोज सर, जो आपने अभी बताया वो बिलिंग केस वाला, उसके अंदर कोई और केस रेफरेंस है जैसे हाजी मोहम्मद बॉम्बे हाई कोर्ट, सर किसी और काफी केस केस की है, और? गुजरात हाई कोर्ट का केस है, मीनाक्षी ओवरसीज का भी पीछे केस हुआ था। काफी केस ला सर, मैं आपको दे दूंगा, मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी है मेरी मेल पे आप मुझसे डिस्कशन में ले सकते हैं, कोई भी चीजें फोन पे मेरा नंबर में अवेलेबल है। ये सारे सेक्शन 135 का न्यू अमेंडमेंट जो भी आया है, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है न्यू एक्ट के अंदर के, में भी सिर्फ 5 ईयर 3 ईयर्स का ही किया गया है, और पुराने प्रोविजंस एज एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगे। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या जो नया जो जो सर ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था कि 5 ईयर 3 ईयर्स आ गया है और 3 ईयर 3 मंथ्स जो आ गया है, क्या किसी केस में पिछले 10 साल का भी नोटिस इशू कर सकते हैं डिपार्टमेंट क्या? तो एक कंडीशन 153 सेक्शन के अंदर जो पुराना अगर कोई सर्च हुई है तो उसमें 10 साल की कंडीशन भी है, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को अगर मिल जाता है तो उसके बेस पे 10 ईयर्स तक का भी केस रीओपन हो सकता है। सर ये लास्ट में मेरा नंबर भी डला हुआ है इसके अंदर, मोबाइल नंबर भी है पीपीटी के अंदर मेरा, अगर मोबाइल नंबर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 9899504368। दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर मैं, 9899504368। ईमेल आईडी है wats579@gmail.com। देखिए इशू काफी बड़ा है और प्रैक्टिकल इशू है। ये मानिए कि 70% केसेस 148 के ही आते हैं डिपार्टमेंट के पास। प्रोफेशनल्स को के लिए आने वाले टाइम के अंदर जो अमेंडमेंट अभी आई है सर्च केसेस के अंदर भी काफी वाइड स्कोप कर दिया है डिपार्टमेंट का, काफी अब आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, तो 148 की काफी नोटिस आप लोगों के पास भी आएंगे। एनी हेल्प मनोज जी, इन केसेस? जी सर। एक्सक्यूज मी सर मनोज जी, क्या मैं आपसे 2-4 मिनट वो फोन पे डिस्कस कर लूंगा, वो 132A वाला या 158BC वाला केस था? जी 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 सर, जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। केशव जी, जी सर। एनी क्वेरी सर इन क्वेश्चन आंसर में सर, कोई हेलो व्हाट्सएप मैसेज वगैरह में सर? मैंने वो किया जी सर, कोई है नहीं क्वेरी, बाकी हेलो पार्टिसिपेंट से एक बार पूछ सकते हैं अभी। सर। सर मेरी एक क्वेरी है। जी मैम बताइए। हमारा एक क्लाइंट का केस था जो बोगस परचेज की वजह से ओपन हुआ, और जो परचेज थी दैट इज मोर देन 50 लाख। जी वो मैम। केस जो है असेसमेंट ईयर 18-19 का है। जी अभी मैम। उसका ऑर्डर आ गया है, लेकिन जो असेसमेंट हुई है वो सिर्फ 20 लाख की एडिशन हुई है।
मैडम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इन्फो जो असेसमेंट में जो रीजन रिकॉर्ड करता है डिपार्टमेंट, सपोज करो मेरी जो रीजन रिकॉर्ड की उसमें 60 लाख या 70 लाख रुपीज है, बाद में एडिशन ओनली 20 लाख रुपीज रह जाती है, तो वो चैलेंजेबल है। वो अगर आप रिट फाइल करें, रिट भी फाइल कर सकते हैं, अपील में आपको रिलीफ 100% मिलेगा उस केसेस में। बस अब क्योंकि एक्चुअली हमने अभी तो लेकिन बोलना, मुझे लगा शोकोज नोटिस में मैंने कुछ बोला ही नहीं। जब उन्होंने 12.5 पे एडिशन की बात की तो हमने चुप रहना बेटर समझा इस टाइम, कि वो बाद में मैडम इसको अपील मीनाक्षी में चैलेंज ओवरसीज का करेंगे। एक मीनाक्षी ओवरसीज का केस था, जिसके अंदर परचेज का 12.5 लिया गया है, बट वो काफी पुराना केस है, आई थिंक 7-8 साल पहले पुराना केस है। अभी जो लेटेस्ट केस आए हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर जो आपका जीपी जो रेशियो है मैक्सिमम उतने तक की एडिशन हो रही है आज की डेट में। ठीक है, ठीक है सर। और ये आप 148 भी चैलेंज कर सकते हो मैडम इसमें, कि द ऑफिसर के बाद जो इन्फॉर्मेशन थी वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। तो एक इसको इसमें मैं कब आपको, चैलेंज करें सर, कमिश्नर अपील में या ट्रिब्यूनल तक वेट हाँ नहीं करना चाहिए, मैडम, क्योंकि आप कुछ ग्राउंड्स ऑफ अपील में डालिए इस चीज के लिए भी। तो कमिश्नर ने अगर उसको बढ़ा दिया तो 100% कर दिया तो बोगस परचेज का। नहीं नहीं, वो मैडम एनाउंस तो कर सकता है बट करते नहीं कमिश्नर, मतलब नहीं मेरा करेंगे। पॉइंट ये था कि राइट टाइम कब है, क्योंकि मुझे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पता है, जब जैसे शोकोज नोटिस में 12.5 का पॉइंट आया मुझे तभी क्लियर हो गया था। बट मुझे था कि अभी चुप नहीं रहना चाहिए, ताकि वो एडिशनल शोकोज नोटिस ना कर दे और उसे 100% ना कर दे। तो मतलब मुझे मैडम क्वेश्चन कब रेज करना चाहिए? मैडम जब ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग अगर आपकी चल रही है, तो जो आपके केस ला आज की डेट में जो मोहम्मद हाजी वगैरह के काफी केसेस ला हैं, हाँ जी। मेरे मैंने तो अभी आपको बताया था, मेरी तो 15 करोड़ 10 लाख रुपए की बोगस परचेज थी, जिसमें ओनली प्रॉफिट रेशियो 2 लाख का ही मेरा 0.50 का था। उसी की एडिशन हुई है। मैं तो अपील उसके लिए भी फाइल कर रहा था, बट एसएससी बोला कि सर कोई नहीं, 2 लाख रुपए तो मैं बियर कर सकता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि मैडम आप उसको 148 को चैलेंज करो, कि जो रीजन रिकॉर्ड किए थे 60 लाख या 50 लाख जो भी अमाउंट था, बाद में डिपार्टमेंट ने मेरी बोगस परचेज इतनी की, वो जो भी आपका था वो एक बार ऑर्डर देखकर ही पता चल पाएगा कि उसमें एग्जैक्ट है क्या। बाकी ये आप ठीक है ग्राउंड्स सर, ऑफ मैं जरूर जरूर लीजिए इसमें। ठीक ठीक है सर, सर बाकी मैं कुछ थोड़ा सा आपसे बाद में डिस्कस कर लूँ, ठीक है। जी मैम, जी मैम। हेलो जी सर, सर। मेरी एक क्वेरी है। सर जी एक्चुअली सर। क्या है कि आईटीएटी से रेफर बैक होके एओ के पास आया, जी सर। और उसने सर उसमें एडिशन कर दिया जो आईटीएटी ने किया हुआ था ऑलरेडी। अब वो केस था 14-15 असेसमेंट ईयर का, तो रिमांड बैक उसमें, किया सर, हाँ जी आपका रिमांड ट्रिब्यूनल बैक ने किया, रिमांड हाँ बैक जी किया था। रिमांड बैक किया है। रिमांड जी। बैक करने के बाद उसने एडिशन कर दिया सेम जो पहले से किया हुआ था। ठीक है अब सर। क्या है कि उसमें सर उसने लॉस लॉस जो था जो हमने नेक्स्ट ईयर में लिया हुआ था उसको भी उसने उसी में अलाउ कर दिया, और हमारी टैक्स लायबिलिटी तो जीरो आ गई। जी लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उस बेस पे वो 15 और 16 असेसमेंट ईयर को ओपन कर सकता है क्या, इस ऑर्डर के बेस पे सर, आज की रीओपनिंग कर डेट में तो सकता है? 15-16 तो टाइम बार हो चुका है। सर मतलब जैसे आईटीएटी से रेफर बैक हो सकता है, तो क्या उसके बेस पे भी नहीं 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 होगा? सर, सर आईटीटी डायरेक्शन नहीं देगी ना, ये देखो आपका 14-15 का असेसमेंट हुआ है, हाँ जी। 15-16 का आईटीटी नहीं करेगी, मेरे हिसाब से नहीं करेगी नहीं सर वो। करेगी? नहीं करेगी सर। सर जैसे कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि क्या है कि हमें हमने दो बेनिफिट ले लिए ना फिर, क्योंकि ऑर्डर में 14-15 में भी बेनिफिट आ गया है, और 15-16 में भी बेनिफिट ले लिया हमने रिटर्न में। सर बट तो ट्रिब्यूनल इस चीज के हाँ, लिए ये नहीं करेगी 15-16 का आप रीओपन करो केस उसका। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो 30 सेकंड का ही टाइम लेती है ट्रिब्यूनल तो बात करने के लिए, इतना टाइम ही नहीं ठीक होता उसके बाद। है, ठीक है। एनी क्वेरी सर? अगर कोई सर आपकी क्वेरी है तो सर मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9899504368, और ईमेल आईडी है wats579@gmail.com। कभी सर अगर चावला सर मौका देंगे तो सर्च सर्वे के ऊपर भी एक बार सेशन किया जा सकता है, और बाकी जैसा भी आप लोगों का आदेश होगा, सर हम बस एक लास्ट प्रोफेशनल्स के लिए क्वेश्चन ऑलवेज ये अवेलेबल था है कि सर। मैं सर एक छोटा सा मतलब एग्जांपल, केस छोटा सा एक मिनट का और छोटा सा एग्जांपल दूंगा। काफी टाइम पहले की बात है, जो हमारे टैक्स गुरु जी हैं गिरीश आहूजा जी, मैंने उनको एक बार ईमेल किया था, बहुत टाइम पहले की बात है, और इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि जो उन्होंने मेल किया, मैंने उनसे कुछ क्वेरी की थी, उन्होंने मेल पे मुझे रिप्लाई नहीं किया, वो मुझे जानते नहीं, बट उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरा सोल्यूशन किया। तो तब से मैंने अपने माइंड में रखी हुई है चीज, अगर कोई मेरे से क्वेरी करता है थ्रू मेल और थ्रू फोन, टाइम थोड़ा हो सकता है कि लेट सवेर रिप्लाई दिया जाए, बट आई विल ट्राई कि जितना मुझे नॉलेज है मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड बियरिंग मी आल्सो। Thank you, sir, for such a valuable session.
Thank you, participants, for patience. I think we should end the session.